हेलो गाइस, वेलकम वेलकम बैक टू एन अदर व्लॉग। यूनिवर्सिटी आ चुका हूँ क्योंकि आज मैं बी बिल्डिंग में अपनी लैब में जाऊँगा। मुझे ना एक असाइनमेंट वगैरह मिली है और मैंने वो करने हैं क्योंकि आज उसकी लास्ट डेट है। बाद चढ़ के अब मैं आया हूँ अपनी लैब के करीब पहुँचने वाला, अब मैं आपको दिखाऊँगा। गाइस मैं लैब वगैरह में देख के आया हूँ, उधर तो मैं जगह ही नहीं है, सारे गर्मी की वजह से अंदर लैब में ही है। कोई जगह ही नहीं मिल रही। मैंने सोचा फिर मैं इधर बैठ के अपनी असाइनमेंट वगैरह कर लूँ और मैंने यही अपने लिए बेस्ट जगह देखी है। ये अपने बैग से रजिस्टर वगैरह निकाला और ये करना, ये शीटें मैं लैब से निकाल के आया हूँ ये वाली, और इसके ऊपर ही मैं अपनी असाइनमेंट वगैरह करूँगा। आज लास्ट असाइनमेंट है और आज ही जमा करवानी है और आज ही मैं इसके ऊपर ही करूँगा पेन। और उसके बाद स्टार्ट शुरू कर दिया। मैंने स्टार्ट किया और मेरा ना पहला क्वेश्चन हो गया, ये देखें मैंने पहला कर लिया। ये मेरा दूसरा क्वेश्चन भी हो गया है और मैं अब इसके बाद तीसरा क्वेश्चन मिला हुआ और मैं जाके लैब में करूँगा। लेकिन ए बिल्डिंग की लैब में ना बी वाली में बहुत ज़्यादा रश है। मैं इंशाल्लाह ए बिल्डिंग में एक क्वेश्चन रह गया, ए बिल्डिंग में जाके करना है। गाइस इधर बहुत सुकून। My channel is like share and comment and subscribe my channel. अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है इस पे फूट फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। Known as VC firms. They are the ones who invest in business ventures, the investors that provide capital to companies with high growth potential in exchange for an equity stake. This capital is provided by the banks, individual investors, or the firms who are dedicated to provide the investment for the startups. So we have Ms. Meena Tarek, Mr. Umar Parvez, and Mr. Uzair Shahid with us today, and Ms. Sana Khan is going to host the session. Before we start, I would like you all to switch off your phones and let's stand up for the national anthem of Pakistan. असाइनमेंट की और उसके बाद मेरी एक लेक्चर था, मैंने लेक्चर से फ्री हो गया। अब डिटोरियम में जाना है कि डिटोरियम में एक फंक्शन है इंट्रोडक्शन टू बिजनेस, उसके बारे में वो हमें इंफॉर्मेशन देंगे स्टूडेंट। आइए आपको डिटोरियम दिखा। Studied the problem and decided to fill the gap in the market and created Matrix. A huge round of applause for Ms. Meena Tarek. Sitting next to Ms. Meena is Mr. Umar Parvez, who is currently partner at High Output Ventures and co-founder and managing director of Matrix. His journey started as an accountant and shortly after that he also was part of the ecosystem as startup fundraising consultant and became a VC himself. Thank you so much for joining us today. A huge round of applause for Mr. Umar. Meena, I was watching one of your podcasts and you said one line that stuck with me, and I'd like to ask you what you actually mean by it and what is this actually. So it goes by, businesses are held hostage by their fear of numbers, right? This is something that you said. So what does this actually mean and how Matrix can help new startup or new business owners to overcome this fear of numbers? Sure, thank you so much. Thank you for having us here and thank you for such a great introduction and like that mini pitch for Metric. मुझे लगता है हमें सारी investor conversations में इनको आगे कर देना चाहिए, ये बहुत अच्छा pitch करती हैं Metric. So held
hostage को अगर मैं थोड़ा सा explain करूँ, in my last many years of working in the startup ecosystem, I've worked with a lot of startups and SMEs. USAID के project के साथ मैंने directly 700 plus entrepreneurs को across Pakistan बड़ी और छोटी cities में जाकर train किया. And over again we see how much people fear numbers. And because of that, businesses fear accounting. जब आप एक business शुरू करते हैं ना, तो आप idea के बारे में सोचते हैं, आप कभी-कभी उसकी वो website जाके URL खरीदते हैं, आप जल्दी से उसका Instagram page बनाते हैं, Facebook page बनाते हैं, आप उसका logo बनवाते हैं, आप कभी भी नहीं ये सोचते कि day one से उसकी कोई accounting करने की आपको ज़रूरत है. Even though आप लोगों पे पैसे लगाते हैं, आप URL खरीदते हैं, आप पैसे लगाते हैं, आप सेल्स नहीं जनरेट कर रहे होते डे वन पे, बट आप एक्सपेंसेस कर रहे होते हैं. मगर डे वन पे आप ये नहीं सोचते कि यू नीड टू बी अकाउंटिंग फॉर दीज एक्सपेंसेस, यू नीड टू बी अकाउंटिंग फॉर दीज transactions that you're making for your business, even on day zero, even on day one. And because most people are not, most entrepreneurs may not be accountants themselves, उनको डर लगता है. जब हम अकाउंटिंग के बारे में सोचते हैं ना, तो it induces anxiety. I don't know यहाँ पे कितने अकाउंटिंग स्टूडेंट्स बैठे हैं, पर मैं तो अकाउंटिंग में बहुत रिस्क कम से कम हो जाए और रिटर्न हाईएस्ट पॉसिबल हो जाए. ये जो 4-5 डील्स में वैल्यूएट कर रही हूँ, इनको मैं आपस में कंपेयर करूँगी टू ट्राई एंड गेट टू दैट डिसीजन. और फिर जो मुझे सब उनमें बेस्ट लगेगी, जो मेरे फंड थीसिस पे फॉल करेगी, जो मुझे लगेगा कि यार ये मेरे पैसे इनमें मैं पैसे डालूँ तो हाईएस्ट पॉसिबिलिटी ऑफ रिटर्न है और लीस्ट पॉसिबिलिटी ऑफ देम डाइंग है, उनको मैं पैसे दूंगी. ये जो आपने बात की कि एक सर्टेन प्रोफाइल को पैसे मिलना शुरू हो जाते हैं, वो क्यों होता है? वो इसलिए होता है क्योंकि है तो VCs भी इंसान, राइट? उनके भी अपने बायसेस होते हैं. एंड वी आर नॉट सेइंग कि वो बायसेस ठीक होते हैं. वी जस्ट वांट टू अंडरस्टैंड कि वो बायसेस क्या हैं, ताकि हम एज स्टार्टअप्स वो गेम खेल सकें. उनका ये बायस होता है कि अगर एक सर्टेन प्रोफाइल पैसे कमा रहा है, राइट, एक सर्टेन प्रोफाइल है who is able to do well, they're executing well, their company seems to be growing, they're raising more money, then maybe that's the profile that is the highest return and the least possible risk. And so I will start to try and find patterns. इस profile वाले और कौन से लोग मुझे नजर आ रहे हैं? हो सकता है वो different sector में और उस sector में मैं interested हूँ, मगर ये वो profile है जो generally is doing well. So in the last couple of years, we saw in Pakistan there were some stories which were hailed as success stories, और उन लोगों के और उन कंपनीज के सर्टेन प्रोफाइल्स थे. तो हमने ये देखना शुरू किया, हम ये देखने लगे कि उस प्रोफाइल वाले पे जितने लोग थे उनके लिए पैसे रेज करना एकदम आसान हो गया, क्योंकि वो कुछ लोगों ने ये ट्रेंड दिखा दिया कि अच्छा हम जैसे लोग हैं ना, हम पैसे रेज भी इजीली कर सकते हैं और हम एग्जीक्यूट भी बहुत अच्छा करें. अगेन ये बायस है, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि उस प्रोफाइल वाला हर बंदा सही काम करे और जिसका वो प्रोफाइल ना हो वो अच्छा काम ना करे, मगर क्योंकि वो रिस्क मिटिगेशन स्ट्रैटेजीज दरमियान में आ जाती हैं, तो वो लेंस उस तरह का बन जाता है. तो अगर आपका वैसा प्रोफाइल नहीं है तो आप क्या करें? अगर आपका वैसा प्रोफाइल नहीं है तो आप क्वेश्चन आई टेक इट टू दैट कि अगर आपका ये प्रोफाइल नहीं है तो आप कैसे एक VC के दिमाग के अंदर घुस सकते हैं और कैसे आप ये ब्रिज एज अ मेंटोर व्हाट शुड स्टार्टअप्स डू टू एक्चुअली कम क्लोजर टू दीस प्रोफाइल्स? अच्छा, सो इसके अंदर ना लेट्स टेक अ स्टेप बैकवर्ड्स. हम जब अपना स्टार्टअप बना रहे होते हैं, मैं हर प्रोस्पेक्टिव एंटरप्रेन्योर्स, खासतौर पे यहाँ पे जो मेरे स्टूडेंट्स आते हैं जो कि सोच रहे होते हैं कि उन्हें अपना स्टार्टअप करना है, आई ऑलवेज टेल देम कि यार फॉर मी द मोस्ट सिंपल डेफिनेशन ऑफ अ स्टार्टअप इज दैट इट इज अ सॉल्यूशन टू अ प्रॉब्लम. थिंक लाइक दैट, कि आप ये नहीं सोचें कि मैंने कोई बहुत ही डिफरेंट यूनिक आइडिया लेके आना है और मैंने जो है ना ऐसी चीज़ करनी है जो कि पहले किसी ने की हो. इस तरह से मत सोचो. आप सोचो कि आप एक प्रॉब्लम का सलूशन बना रहे हो, और वो प्रॉब्लम क्या है? वो प्रॉब्लम वो है जो कि आपने भी कभी फेस किया हो. दैट्स व्हेन यू रिलेट टू दैट प्रॉब्लम वेरी वेल, एंड व्हिच कम्स टू द नेक्स्ट पॉइंट इज द डोमेन नॉलेज, कि आपको उस फील्ड का नॉलेज होना बहुत जरूरी है. क्योंकि आपने वो प्रॉब्लम एक्सपीरियंस किया होगा, तो प्रॉब्ली देन यू विल बी एबल टू इजीली अंडरस्टैंड कि वो प्रॉब्लम है क्या. सो द फर्स्ट थिंग दैट आई टेल कि इस ब्रिज को गैप करने के लिए द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि आप पहली बात तो ये कि जब प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं ना, देन यू आर एक्चुअली लुकिंग एट एन इम्पैक्ट. ठीक है, एंड उसके बाद क्या होता है कि आप जब उस इम्पैक्ट की बात कर रहे होते हो, तो वो जो प्रोडक्ट आप बनाते हो उसकी कस्टमर बेस ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही होती है. यू गो आउट इन द मार्केट. आप ऐसे प्रोडक्ट के मार्केट में नहीं जाते जो कि आपने पहले कन्विंस करना पड़ता है आपको, यार ये देखो, जैसे इफ वी टॉक अबाउट मैट्रिक्स, इट्स द जनरल प्रॉब्लम ऑफ ऑल स्टार्टअप्स कि उनके पास एक फाइनेंशियल गैप है, एंड दैट्स वेयर दे कम इन.
Likewise, जब आप ये चीजें कि VC फर्म में जाओगे ना, and you have all these three things. First of all, you're solving a problem that you kind of have also faced. Second of all, वो आपने कस्टमर पर्सपेक्टिव से सोचा हुआ है. आपने ये नहीं सोचा कि यार मैं समझता हूँ कि चीज होनी चाहिए मार्केट में. आप अपने जाके प्रोस्पेक्टिव कस्टमर्स को, जो मार्केट रिसर्च को हम कहते हैं, जाके देखें कि क्या ये जो आपके कस्टमर्स हैं उनका भी प्रॉब्लम है कि नहीं है. आप तो समझ नहीं कि चीज होगी, बट वो उन स्टार्टअप उन कस्टमर्स का वो चीज है कि नहीं है. एंड थर्ड थिंग इज योर डोमेन नॉलेज. इफ यू हैव दीस थ्री थिंग्स, ठीक है, और ऑन टॉप ऑफ दैट यू नीड टू कम्युनिकेट वेल, एंड दैट्स वेयर द इंक्यूबेटर्स कम इन, कि जहाँ पे आपको भी बेसिकली हेल्प, जैसे हम तकनीक में बेसिकली वी प्रिपेयर यू फॉर 5 डिफरेंट काइंड्स ऑफ पिचेस, जो कि इन्वेस्टर पेज, सेल्स पेज, मार्केटिंग पेज, टेक्निकल पेज, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज द लेमैन पेज, कि आपने 1 मिनट 30 सेकंड के अंदर एक लेमैन को कैसे अपना प्रोडक्ट एक्सप्लेन करना है. If you are able to do that, तो आपकी कम्युनिकेशन हर लेवल पर आ जाती है. एंड देन अगेन बाइलिंगुअल होना, इंग्लिश की पेज होती है, सब उर्दू की पेज होती है, जिसमें आप कंफर्टेबल होते हो. तो इट्स अ प्रोसेस दैट वी बेसिकली हम हर स्टार्टअप को गुजारते हैं इसमें से, ताकि आप जो काम अच्छा कर भी रहे हो ना, वो कम्युनिकेट तो कर सको. एंड बीइंग अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर, आई नो कि हमारे अंदर ये एक चीज मिसिंग होती है कि वी आर नॉट एबल टू कम्युनिकेट वेल. जितने भी टेक्कीज हैं, टेक स्टार्टअप्स हैं, उनके अंदर वो टेक्निकल नॉलेज बड़ा अच्छा होगा उनके पास, वो हर चीज प्रोडक्ट में आ जाओगे, बट समहाउ द अदर स्टेज के ऊपर आके दे आर अनएबल टू एक्सप्लेन इट. 4 लोगों के सामने एकदम इंटीमेट हो जाएंगे. तो वो जो वो स्किल है ना, दैट्स वेयर वी कम इन, एंड वो बहुत जरूरी है इस गैप को करने के लिए. And I actually wanted to ask you, how did you become an expert at Subway sandwich designing? So honestly, अब मैं Subway इतना खाता नहीं हूँ, but in my earlier sort of accounting days, my office was very close to Subway in the Blue area, Islamabad. So every other day मैं probably Subway खा रहा. Alright, but next startup is good. हेलो गाइस, मैं अभी डिटोरियम से अभी भी फ्री होके आया हूँ. और डिटोरियम वाले उधर हमें इंट्रोडक्शन टू बिजनेस के बारे में इंफॉर्मेशन दिया. स्टूडेंट ने सवालात किए और बहुत मज़ा आया. और व्लॉग का आज तक एंड. अल्लाह हाफिज़. खत्म. बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया.